Good evening to all the participants present here. Behalf of the IT Student Forum (RGIT), it gives me an immense pleasure to welcome you all for our second BTP program. IT Student Forum or ISF RGIT is the student branch of Institution of Electronics and Telecommunication Engineers from RGIT. The main objective of ISF RGIT is to encourage and motivate students out of their classroom world and make them dive into unexplored horizons of technology and also give them a platform to unleash their inner skill set. All of this is done through organizing various workshops, webinars, events, and also through our very own program that is BTP. So our today's training program that is BTP, an event for students of students by the students, is an initiative wherein students train other students to handle various softwares which may or may not be related to our engineering field. Through this program, they are able to develop their skill sets for free up to the beginner's level. Our today's training program is on web development. Web development is all about the building and maintenance of websites. In these 3 days of training program, you will be taught with CSS, HTML, and Bootstrap, along with building your own website simultaneously. Our speaker for this training session will be Navya and Pooja. I hope everyone has downloaded the VS Code software. If not, you can also use Notepad for the same. Now I will request Ms. Navya to start with the session. Hello, guys. A very good evening to one and all. Am I audible? Can someone just give me confirmation? Yes, Yes. Yes. yes, you Yes, are. Yes, Thank audible. you. yes. So, I am Navya Sheregar, student of RGIT BE EXTC. I work as an internet bureau solution. So, that's it about me. I'm very happy that I got an opportunity to speak in front of you all. I'm thankful to our IET committee to give me this opportunity to share my learnings with my colleagues. So, can we guys give a cheers to our IET committee in chat box, please? Okay. So, guys, like it's a request to everyone that if we are attending this workshop, I want everyone to attend it sincerely so that like जैसा हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स होता है कि मीट चालू कर दिया साइड में रख दिया we here we are doing workshop to develop our own skills, so please don't do that कि मीट चालू रख के चले गए and all those things. I'll make sure that you will get a good kickstart after joining this, after you complete with this 3 days course. Okay, so I guess we are good to start. Can you give me what's the status of installation? Like, did everyone install it or yet to install or have some Then doubts? yes, Installed. yes, Okay, we installed. okay. So many of us are done with installation. So is it okay if I skip with installation or should I? Yes. Okay, thank you. So uh, our topic is web development. So what are your views on web development? Can you just put it in chat box, please? Anyone? Yeah, building a responsive website. Okay, so you're right. Web development is building a website. Now, what is website? Website can be a single page, it can be a multiple page, like or
It can be static as well as it can be a dynamic page. Okay, maybe it may be confusing for you all now, right? Like what is static, what is dynamic pages. But as we move on, everything will get clear. So don't worry about it. So, uh, guys, let me know if my screen is visible to you all. Yes. Okay, just a second. Hmm, yeah, so it's visible now also, right? Guys, am I audible? Yes. Yes. Please be Yes. responsive. I can't see your chats now, so please, you all can turn mic on and just tell me, okay? So yeah, so we learned that web development is building of websites, and I said what is website? Website can be a static single page, dynamic page, or it can be a multiple pages. Now, when you finish with web development, there is a role you get, that is web developer. So in that also we got three kind of developers. First is front end developer, second back end developer, and third one we have full stack developer. So who, like, what are their tasks? Like first one we have front end developer. Now what is front end, what does this front end developers do? Imagine like you all have a form. Okay, so whatever, like in form you see a background or maybe a text or say input box, buttons, whatever you see that, like जो भी एक visual look होता है ना फॉर्म का, उसे हम जो वो काम करते हैं डिजाइनिंग वाला, जो कलर्स देना, टेक्स्ट को स्टाइल्स करना, ये सब काम होता है हमारे फ्रंट एंड डेवलपर का. ओके, सो आई जस्ट शो यू अ एग्जांपल. So this page, this form which you can see is our just like front end development wala part. Now if I am entering values over here, some random values I am entering now, so it's just whatever values I am entering now, I need to store it somewhere. Okay. So this storing of this database, all this work will be handled by our backend developers. So basically, what a front-end developer will only look after the stylings, and back-end developer will do the work of just maintaining of databases, creating databases, and how like our form is connected to the database. This all works are done by back-end developer. Okay, so in front-end developing, we have like HTML, CSS, Angular. All these are the tools which we use. And for back-end development, we have tools like PHP. We use PHP language, Python. We have Python-based framework, that is Django, and Laravel, which is PHP-based framework. So, like, these are the things. Now, what does this full stack developer do? He does the both work, that is both front end development part and both also this back end development part. So I guess this may be going bit of bouncer, but as we proceed, I'll make sure your everything get very clear to y'all. Okay, so yeah, our main focus topic is front end development. So
in that, a basic thing which we need to learn is HTML and CSS. HTML stands for Hypertext Markup Language, and our CSS stands for Cascading Style Sheets. So these are the two basic language. If you do this very well, then you will get a good command in our front end development part. So as it is the beginners training program, we are starting with these two basic languages right now. So see, this is just, suppose imagine just this is our website. Doesn't this looks very boring type? Like अगर मैंने इस type का website बनाया और I am starting my business with this website, will the customers get attracted? What do you all think? No. Yeah. So we need to make it look like bit good. So we use HTML. This one, don't you think this one looks bit structured one, right? So I'm not saying it's the best one, but it's look bit structured. So this is what our HTML does, structuring of our page and page content and giving a meaning to the page content. This is what our HTML does. Now, what can we do if I want to make this more better? Anyone, any guesses? Guys? Okay. Are we all awake or did everyone sleep? कलर्स ऐड कर सकते हैं. Sorry, I didn't hear you. कलर्स ऐड कर सकते हैं. Add some Yeah, pictures, yeah, correct. Attractive styling. Yes. some So, images. yes, right. So, this is what is the work of CSS, that is cascading style sheets. It gives colors, it gives an attractive look to our page. So, I hope like थोड़ा सा rough idea सबको आ गया होगा why HTML CSS is important. Yes. So you'll see this difference. First one is our normal text, and when we add HTML to it, we get unstructured text. And after adding CSS part, we got this like beautiful page. We can make it more better by adding JavaScript. Even many of us asked me whether we are doing with JavaScript or not. So answer is no, as this is a beginners training program. So we are not going with JavaScript for now. Okay. So now we will start with the learning of HTML basic tags. Pooja, can you start please? Yes, Yeah, just a second. I hope I'm audible. Yes. Am Yes, I? you are audible. Yes, Okay. yes, you are audible. Hello, guys. I hope you all are doing good. Myself, Pooja Palekar, and I am a final year student of RJIT. I have sound knowledge of web development. So, yeah, today I'm going to teach you some basic HTML tags. So, I will tell you the overview of the day one. So, our day one comprises of, first of all, we are going to learn some basic HTML tags. Then at the end, we will try to design one assignment using the same. So stay tuned till end. Okay, guys, everybody has installed VS Code. So without wasting time, let's get started. Everyone open VS Code. Okay, wait, I will present my screen. I Hello? hope screen is visible. I've Is it? just installed the
code. Hello. Yes. And but I have not seen the whole video. Is it okay? I've just installed it and I didn't see the next end of the video. Is it fine? Or was that important? No, it's okay. It's okay, right? When you click Thank on you. VS Code, you will end up on this page. Guys, now I'm presenting my screen, so I can't see chat box. Please try to unmute if you have any doubt. Should I go further? Yes. Yes, yes. Okay. So see guys, like I'm creating a file. So you also create as per your convenience. So just click on this open folder. I'm creating a folder on desktop. I'm giving a name as day 1. Okay. Select that folder. Do along with me so that you can understand. Okay. So like create a folder. There is one option here, new file. So click on that icon. So I'm having as the basic tags. Basic tags.html. So just keep in mind that save the file using .html extension. Done till here. I can't see the chat box. Can you repeat once more? Reply. Yes. Okay, so like see, I have created a folder, and in that you can create a new file and give the name as per your convenience. Save that file with .html. Okay. Okay. So yeah, I'm considering everyone done till here. So see guys, HTML is like hypertext markup language. It will decide the content of your page. It doesn't add any styling and all. It will just decide the content of your page. So let's started with the tags. So just give exclamation mark and hit, put exclamation mark and hit enter guys. Okay. So you're provided with this code, with this ready-made code. Okay. So see, the now very first tag, your all HTML document basically should start with this line, doc type HTML. Guys, are you there with me, na? Yes. Okay, okay. Can you repeat? How to write this? Okay, Ankit. Okay, Ankit. Just give exclamation mark. See, I'll just delete this and put exclamation mark and hit enter. Okay. Yes, Ankit, done. Every HTML document should start with this tag, like exclamation mark doc type HTML. Okay. So at the name itself indicates doc type. So it's a document type. Basically, we are using HTML file, which is the latest version of HTML, which has some additional tags and all. So yeah. So doc type will do what? It is an instruction to the web browser about what version of HTML the web page is written in. So that as we know, we run the HTML program using browser, right? So it will tell the browser that it is written in HTML5 version. And suppose if you are using HTML4, so there's different syntax for it. So HTML5 is pretty good.
And then yeah, HTML, then this is language, which is EN. And then under head tag, so head tag basically your metadata tag. Metadata means what like it contains some char set and this content like with device with initial scale one, like all this part is comes under basically CSS. So what it is, we will see in detail in tomorrow's session. So like yeah, head tag. So body tag is Excuse the me, one which is ma'am. visible to the user. Yes, yes. Ma'am, can you repeat the head tag? I guess your voice got stuck or my internet was fluctuating. I'm not sure. Yes, yes, your Yeah, word was okay. stuck. So Yes, ma'am. basically now yeah, okay. Okay, head tag मतलब क्या होता है ना? It contains a specific information about your web page. Like see, ये charset मतलब क्या होता है? UTF-8 character set होता है. So it gives you that. The styling, you can add script as well. So basically this part now comes under like little part comes under this. So we will see this like in detail in tomorrow session. And as you know, title, like suppose after so many days, if you open this doc, you should come to know like what we are creating. So yes, I'm giving as a basic tag only, basic tags of HTML. Okay. So yeah, this is the comprises of head tag, and also like every open tag should have the closing tag. Like we know in programming languages we have semicolon that will be the compiler that this is the end of your statement. So similarly in HTML you have to give this closing tag. So the whatever part comes under body is visible to the user. जो भी part हमें दिखता है execute के बाद, that comes under body part. Okay. Please tell me if I'm going fast. Okay. Pooja, there is a Let's start. query in the chat box. Okay, okay. Shivani Shirke is asking what is the difference between HTML4 and HTML5? Okay, see, HTML5 is the latest version of HTML, and in HTML4 is what when you like execute your program, it will like it has to add some it has to refer some queries like I don't remember exactly, but something DMT or SGMP something queries it has to refer, and it will take time to execute. And HTML5 is like latest version of HTML, and it has some like advanced features, I would say. Yes, Shivani, I hope you get cleared. Okay. Let's start with basic tags. So like very first tag is our heading tag. So just okay, so heading tags are like till H1 to H6. There are 6 heading tags. So let's see like how it get executes. Okay, so it is case sensitive, guys. So everything should be small. Okay. So H1, welcome to day 1 web dev. Welcome to web dev. So see, now let's see how it get executed in the browser. So just hit enter. Code language not supported or defined. HTML, okay. HTML. Why it is showing this?
Okay, I don't know why it is showing like that. It's a very basic code. Navya, can you help me with? Yes, can you please show the error again? Anybody can see like code language not supported or defined. It is showing. What we can do now is we can use Notepad for the timing. Okay. Yeah. So guys, I don't know what is the problem. Yeah. So please open the notepad. I have this But Sublime the text, so code I am was opening working. it. It was getting executed. Huh? But here it is showing that like code language not supported or defined. Okay, you continue with VS Code only. I will start in the Sublime text. In run, we have to select Google now as environment. है ना? You can directly open the browser and there you give your file name with .html index or extension. So Okay, you'll get let's your try that output. one. Okay. Let me check the file name. Basic THE. Okay. No, it is taking on something else only. Mm. Okay, guys, not an issue. If you guys getting output, then please continue in the same. I am just continuing in Sublime text. I don't know what's the problem. So yeah, let's get started. HTML, then head. Okay. Then I'm getting stuck. I'll start with body directly. Okay. So, okay, guys, we have seen about the heading tag. Let me try in this whether it's working or not. Welcome to day 1 web dev. Okay. So let's see whether it's working properly or not in browser. See, yeah, okay. It is working. So see, so I have given the tag is h1. मैंने h1 दिया था तो इसीलिए इसका width थोड़ा बड़ा आया. So there are 6 tags like h1 to h6. So if we give that, you will come to know the difference. Hello. Yes, yes. Hello. Yes. Can you Yes. tell how to run the code in VS Code? Actually, see, I was running in VS Code only, but it is showing that error the code language not supported or defined. So that's why I switched to Sublime Text. David, Even if everything.
Yeah, see, if you have done it in VSC Code, what you can do is wherever you have saved your file, okay, with .html extension, you have to save the file. So wherever it's saved, go to that file, go to that path, and you can just open it from there. So it will be, you'll get output in browser. Just try it and let us know if it's working. Yes. Till then, I'll write some code in. Guys, you have to just copy paste and see what's the change. Okay. We have tags from H1 to H6. So I'm giving. Okay, Control S. Let's see. Browser. Okay, see guys. So जब मैंने टैग दिया था H1, so it comes in a bold as well as इसका width ज्यादा था. फिर H2 धीरे धीरे उसका width कम हो गया. Similarly for H3, H4, H5, H6 जब भी हमें बहुत like small icon का print करना है, so we will go with H6. I hope you understood. It was like pretty easy. I think everyone know this. So I am moving towards the next tag. Devish, did you run the code in VS Code? It's not happening actually. Okay. Did you open from the file where you have saved it? Yes, I opened in Chrome browser. No, in whichever folder you have saved your file now, just go there and open it. I'm getting the output on VS Code, by the way. Okay. Okay. Did you write the just same code patient as I have control. written? Head. Okay. Okay, no problem, guys. You continue with VS Code. It is the same as Sublime Text only. So let's move towards the next tag, which is the paragraph tag. So it's case sensitive. So please write everything in small letter. Okay. So paragraph. Suppose I'm giving like paragraph. Yeah, myself. Later. Currently. Current studying in final year. Year RJIT. That is so like giving a small paragraph. Let's get check. Please save your file and then check in the browser whether it's come or not. Okay, see guys. Paragraph आ गया जो मैंने दिया था Sublime Text में. So just remember this, like it is very important that you should give a closing tag. There are some tag in which closing tag is not necessary. I will tell you the tags later on. But फिलहाल के लिए closing tag देना. Okay. So move towards the next tag. So see अभी paragraph है. Paragraph मुझे bold चाहिए, italic चाहिए. तो उसके लिए भी है. So let's see, bold मतलब of course वो थोड़ा उसका width बढ़ेगा. Okay. So save the file and see what changes get happened. See guys, पहले थोड़ा उसका length ये था, अभी थोड़ा ये dark हो गया है. So since we have used bold tag, now let's use the italic tag in the same. Okay. Italic tag starts with I. Okay, let's save the code and see whether we got the output or not. See guys, it comes in italic. So यही HTML का ये है, we can do. So let's see the next tag. Guys, you are getting it ना? Otherwise मैं बोलते जा रही हूँ और आपका हो नहीं रहा. So please interrupt me in between.
I will try to solve your issue. Okay, guys. So let's see the next tag. So next tag is our list tag. So we know that list. Suppose if we go in, italics नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. So see, सिर्फ I tag देना है आपको, small I, and like don't forget to give this closing tag, otherwise it will throw an error. जो लाइन मैंने लिखा है just see same है क्या, and then tell me if you are getting the output or not. आया अभी आया. Yes, yes, आया? getting. Okay. Yeah. Oh. Problem. So let's see the next tag is the list tag. अभी अपने को पता है list में अगर मैंने कोई for example मैं अभी जा रही हूँ McDonald's में, तो मैंने मंगाया है कॉफी में अगर मुझे लाइक सॉरी टी मंगाया मैंने, मुझे ब्लैक ये ग्रीन टी चाहिए. So that see the list tag. So there are three types of basically. Yeah, unordered होता है, एक ordered होता है, और एक होता है other. Okay, so see one by one. So let's see the unordered list. So unordered, so it start with U. That's why you have to give tag as UL. Okay, unordered tag. So इस UL में अभी मुझे लिस्ट बतानी है क्या क्या चाहिए. जैसे कि मुझे चाहिए कॉफी, बर्गर, पिज्जा. सो लेट्स चेक लिस्ट. मुझे चाहिए यहाँ पे कॉफी. मैं यहाँ पे क्लोजिंग देना है आपको. डोंट फॉरगेट टू गिव द क्लोजिंग टैग. देन अगेन लिस्ट, देन या पिज्जा. ओके, देन लिस्ट है बर्गर. या नाउ अब लिस्ट कंप्लीट हो गया है, तो अपने को ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग ने दिया था वो क्लोज करना बाकी रह गए. सो सी UL. Okay, now save and let's see what happened in browser. Oh yeah, see guys, you can see this coffee, pizza and burger. So यहाँ पे देखो ये unordered list है, इसलिए by default जो उसका bullet point है that is dot. You can change that bullet point as well. So that is the CSS part. So we'll discuss tomorrow. Yeah, you want I will tell you. जो भी हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट देते हैं, सो जस्ट द स्टाइल इक्वल्स टू, देन है अपना लिस्ट स्टाइल टाइप. देखो यहाँ ऑटो जनरेट है. लिस्ट स्टाइल टाइप में मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे सर्कल में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, फॉर एग्जांपल स्क्वायर. सेव. या सी you can see it comes in a circle. So you can change it's a CSS part which will be discussed tomorrow. So this is unordered list. अभी देखते हैं ordered list. Ordered list में क्या होगा, सब कुछ like 1 to 3 में आएगा. I will copy the same. Control V slash. Okay, Control S. अभी ordered list का देखते हैं क्या आया है. हाँ ये देखो अभी यहाँ पे 1 2 3 ऐसा नंबरिंग करके आया. अगेन यू कैन चेंज दिस नंबरिंग टू दी रोमन, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, या फिर कैपिटल ABC, स्मॉल ABC. So that's the next thing. I hope you got till here. These are the very basic tags. These are basically, there are many tags in HTML, but I am teaching you the most like more frequently used tags. Okay guys, so move towards the next tag, link. Okay, link मतलब क्या होता है? Of course it will suppose if you click on one link it will take you on the next page. So let's start with the reference A. Then href means what? href तुम्हारा लिंक का डेस्टिनेशन है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे दे रही हूँ फेसबुक. मैं अपना फेसबुक का I'll just try to give my Facebook page का लिंक. कोई भी लिंक जो भी आपको देना है, जस्ट टू टेल यू. ओके, सो मैंने यहाँ पे फेसबुक का लिंक दिया है. देन या ऑफ कोर्स पूजा's FB.
ओके, सो सी लाइक पूजा एफबी करके आएगा. अभी हम लोग ब्राउजर में देखते हैं क्या है. सेव फाइल एंड जस्ट गो टू इन योर ब्राउजर, रिफ्रेश द ब्राउजर. सी यहाँ पे देखो गाइज, पूजा एफबीआई अंडरलाइन करके आए. हम लोग कोई भी लिंक जब देखते हैं तो क्या होता है ना, वो लाइक ब्लू में होता है और वो अंडरलाइन होता है क्योंकि वो अनविजिटेड है. सो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी सो इट विल टेक द पेज. सी फेसबुक, वो मुझे फेसबुक पे लेके जाएगा, राइट. सो अभी देखो ये मेरा ना सेम विंडो में ओपन हो रहा था. अगर मैं बैक जाऊँ ना तो फिर मुझे यहाँ पे बैक है, राइट. सो सपोज इफ यू वांट टू open this in a different tag, so there is tag for that. Target, sorry, yeah, it is equal to underscore blank, so that it will take you on the next page. वो अलग टैब में खुलेगा. So let's see, refresh the browser, now click. See, अभी ये अपना अलग पेज में खुला है और अपना बेसिक HTML यहाँ पे. Okay, I hope guys you got till here. The frequently Hello? used tags, I know these are basic, but these are most used. Hello. Yes, Can you please go slowly? yes, Ankit. Can you please go slowly? Okay, fine. No problem. Can you explain again that href? Okay, see guys. href, हाँ, href एक लिंक टैग है. A stands for attribute. href आपके डेस्टिनेशन है जहाँ पे भी आपको जाए. So any link you can give over your FB page, Insta page, LinkedIn page. So मैंने यहाँ पे अपना FB पेज का लिंक पेस्ट किया था रेफरेंस में. और मैंने ये टारगेट मतलब क्या होता है ना, इट विल टेक यू ऑन द न्यू पेज. जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, अगर टारगेट नहीं दिया तो वो सेम पेज में खुल रहा था, मुझे वो बैक बटन यूज करना पड़ रहा था. टारगेट वाला मुझे नेक्स्ट पेज में लेके जा रहा है. सी ओके, हाँ. So this is how the link works, and this is necessary to give because see, अगर आप सिर्फ लिंक दिया और आपने ये कुछ एड्रेस दिया नहीं है तो आपको समझेगा नहीं क्या लिंक जनरेट हो रहा है या नहीं. So it is important to text in between this a tag. Okay, so next tag. So next I'm going to teach image tag again. So it image ना, so it start with img. अगेन img में क्या है, इस इमेज के लिए हम लोग सोर्स यूज करते हैं किसी भी लाइक इसके डेस्टिनेशन के लिए. अगर मेरे पास कोई फोटो है तो मैं उसका सोर्स दूंगी. ओके वेट, लेट मी गिव यू द, मैं यहाँ पे एक लिंक ये करती हूँ इमेज का. डॉक्यूमेंट्स, ई फोल्डर, हाँ ई फोल्डर में मेरे पास एक लिंक है. सो एक फोटो है बेसिकली जेपेग फाइल. सो जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट फोटो एंड जस्ट गो इनटू द प्रॉपर्टीज, go in properties, go into the security detail and just give this path. Okay, just copy this path. Can you just repeat this part again? The whole procedure. Okay, I will repeat. Yeah. So see, I have मेरे पास एक इमेज था जो कि मेरे लाइक ई फोल्ड मतलब ई ड्राइव में सेव है. सो वहां पे जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक में प्रॉपर्टीज. ओके, प्रॉपर्टीज के अंदर सिक्योरिटी में जो भी आपका ऑब्जेक्ट नेम करके आ रहा है पाथ, वो आपको कॉपी करना है. सिंपल. ओके, मैंने कॉपी किया. अभी जहां पे भी आपने अपना इमेज टैग दिया था सोर्स, सो वो डबल कोट्स में यहाँ पे आपको वो एड्रेस कॉपी करना है. समझा? सो लेट्स सी इमेज आ रहा है. समझा? हाँ ठीक है. लेट्स सी इमेज आ रहा है कि नहीं. Yeah, so see, I have given the image, I have this image. So जो भी इमेज है मेरा आया, अभी इसका width कितना छोटा बड़ा वो सब that again comes under CSS. We are not going to like आज ही हम लोग वो सब नहीं देखने वाले. So just to tell you how to execute. और या अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इमेज नहीं था,
अभी ये मेरे से 10 इमेज नहीं है, सो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे एक ऑल्ट करके दे रही हूँ, मतलब ऑल्टरनेट में मुझे पता है कि क्या है, टेंट का इमेज है, सो मैं यहाँ पे दे रही हूँ टेंट इमेज. सो लेट्स सी व्हाट इन ब्राउजर. रिफ्रेश. सो सी यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेज नहीं था, बट मुझे पता है कि क्या इमेज होना चाहिए था. सो मैंने एक ऑल्टरनेट यहाँ पे टेक्स्ट देके रखा है कि टेंट. सो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस. अपना यूजर डिफाइंड होना चाहिए. आई होप यू गाइज इट. तेजस फुटाने. ओके ओके. सी जहां पे भी इमेज सेव वहां पे जाओ, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट. प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में सिक्योरिटी, यहाँ का पाथ कॉपी करना है आपको, एंड जो भी सोर्स टैग था वहां पे आपको पेस्ट करना था. ओके. आई होप तेजस्वी गॉट इट. And what's the use of that ALT? ALT इज ऑल्टरनेट. लाइक मेरे पास अभी इमेज नहीं था, 10 करके कोई इमेज मेरे नहीं है, सो मेरा कोड यूजर डिफाइंड होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, ऑल्टरनेट, उसका शॉर्ट फॉर्म है ALT. तो बताया कि हाँ ये टेंट का इमेज चाहिए था. तो अभी देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेज नहीं था. हाँ सी 10 इमेज करके नहीं है, बट मुझे पता है क्या होना चाहिए था, टेंट का होना चाहिए था. सो अगर यूजर लाइक रन करेगा तो उसे पता चलेगा, अरे हाँ बाय डिफॉल्ट पाथ गलत दिया गया है, बट द इमेज शुड बी टेंट इमेज. सो या दिस इज द image tag. Okay. Let's take the another tag, which is table. Okay. टेबल तो बहुत ही लाइक कॉमन है. टेबल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम. ओके. सो ऑफ कोर्स टेबल टैग है तो इट शुड स्टार्ट विथ टेबल. गाइस VS कोड में रन हो रहा है ना कोड, सिंस आई सबलाइम. Yes, running. ओके 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 फाइन, नो प्रॉब्लम. ओके. सो सी टेबल तो ऑफ कोर्स टेबल टैग देना पड़ेगा. देन अभी मुझे रोज फाइंड करना है, राइट. सो रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ TR. T स्टैंड फॉर टेबल एंड R स्टैंड फॉर रो. ओके. जस्ट हिट एंटर. सो TR. अभी मुझे क्या है ना, मेरा एक रो है, अभी मुझे वो रो में क्या क्या चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे भी चाहिए जैसे कि कंपनी है, उसका CEO है और उसके हेडक्वार्टर्स हैं. सो वो कॉलम में चले जाएंगे, राइट. एक रो और फिर उसके अंदर 3 कॉलम मुझे चाहिए. तो मैंने क्या किया, पहले एक रो मैंने डिक्लेयर किया, अभी उस रो में मुझे 3 कॉलम चाहिए. सो कॉलम के लिए वी यूज TD. ओके. अभी इस कॉलम के अंदर मुझे अगर चाहिए कंपनी नेम, कंपनी नेम. ओके. सो मैं अगेन एक और मुझे एक कॉलम चाहिए TD. हिट एंटर. कंपनी नेम, देन CEO. देन अगेन TD. हिट एंटर. सपोज मुझे चाहिए CEO और उसका लोकेशन. ठीक है, कंपनी किधर है, लोकेशन ऑफ कंपनी. ओके. सो देखो अभी एक लाइक एक रो है, उसके अंदर 3 कॉलम है. फर्स्ट लेट्स रन दिस. सी क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, देखते हैं. हाँ, सिंस अभी मैंने इसे कोई स्टाइलिंग ऐड नहीं किया है. स्टाइलिंग इन द सेंस क्या, मतलब वो उसका टेक्स्ट बॉक्स कितना होना चाहिए एंड एवरीथिंग. सो दैट्स व्हाई इट्स कम्स इन अ सिमिलर लाइन. अगेन वो टेबल की प्रॉपर्टी है ना, बॉर्डर एंड ऑल, that comes under CSS. So I'm not going in that much detail, but you should know like how to create table. Table के लिए table tag create किया, मुझे एक रो चाहिए था. अभी फॉर एग्जांपल मैं और एक रो क्रिएट करके दिखाती हूँ, फिर you will get an idea. Control V. Let's save it. See what's going on. Yeah. See guys, मेरे पास एक और दूसरा एक रो आया. कंपनी नेम मेरा फर्स्ट कॉलम है, CEO मेरा सेकंड कॉलम है, एंड लोकेशन ऑफ कंपनी ये मेरा थर्ड कॉलम है. और 2 rows. You can add a style if you want. I'm not going.
I'm not showing that. Okay, see. So I hope so you guys understood the table. Can you repeat the table one? Oh, see, wait, I'll add the style so that you will get an idea. See, टेबल है तो मैं सिर्फ आपके इसके लिए दिखा रही हूँ स्टाइल. देन उसके मुझे चाहिए बॉर्डर. बॉर्डर ब्लैक 1 पिक्सल ब्लैक बॉर्डर चाहिए. गाइस ये नहीं समझेगा तो भी नो प्रॉब्लम क्योंकि ये कल कवर होने वाला है. सो प्लीज. हाँ, अभी यहाँ पे मैंने पूरा ये नहीं ये किया है लाइक इसके बाद कंपनी टैग के बाद क्या ऑल. सो सिर्फ मैंने बताया लाइक एक टेबल के फॉर्म में आया है. अभी आपको टेबल है, टेबल में अपने को क्या चाहिए, रो चाहिए. तो इसीलिए मेरे टीआर के मैंने ऐसे 2 क्रिएट, राइट. उसके बाद मुझे मुझे रो एक फर्स्ट रो में मुझे ये 3 चीजें चाहिए थी, कंपनी, सीईओ और लोकेशन. सी रो एक ही है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, देयर आर 3 कॉलम. रो एक ही है. सो मुझे फर्स्ट रो में क्या चाहिए था, कंपनी नेम, सीईओ एंड देन लोकेशन ऑफ कंपनी, ऐसा. सो इसीलिए वो मेरा फर्स्ट ये टेबल का जो है ना वो फर्स्ट कॉलम आ चुका था. अगेन अभी देखो लाइक सी अभी मुझे ये बोल्ड में चाहिए ना फर्स्ट वाला. तो फिर व्हाट आई कैन डू, आई विल ना टीएच. सो इंस्टेड ऑफ टीडी आई विल मेक टीएच. टीएच मतलब वो सिर्फ उसे हाईलाइट करके देगा, थोड़ा बोल्ड में आएगा. टीएच टीएच. Your voice is breaking. Yes, any problem? सी देखो एग्जीक्यूट करती हूँ. सी ये बोल्ड में आया. तो अभी कंपनी नेम के नीचे मैं क्या डालूंगी, लाइक फॉर एग्जांपल अमेजोन है, फिर उसका मैं सीईओ डालूंगी, फिर लोकेशन ऑफ कंपनी किधर है वो सब. अंडरस्टूड गाइस? Can you just repeat that border part? ओके, बॉर्डर पार्ट ना. सो सी बॉर्डर मतलब क्या है, मुझे टेबल का एक बॉर्डर चाहिए था. कि क्या, इसीलिए मैंने क्या किया ना, इधर ही टेबल के बाजू में स्टाइल टैग ऐड किया है. स्टाइल इज इक्वल टू मैंने बॉर्डर दिया. मुझे बॉर्डर क्या चाहिए था, ब्लैक कलर का बॉर्डर चाहिए था. 1 पिक्सल मतलब उसका विड्थ है, बरोबर. सॉलिड मतलब पूरा लाइन प्लेन आना चाहिए, इट शुड नॉट बी डॉटेड. इसके लिए मैंने ये टैग ऐड किया. ओके एंड देन एंड Okay, thank you. यहाँ पे देखो ये बॉर्डर आया, समझा ना? ठीक है. Yes, yes. Okay, so yeah, okay. So this much about the table tag, right? So see, अभी next tag ना I will tell you about ये division और एक span. There are 2 kinds of element. Block level element होता है और एक inline element होता है. So जब हम लोग division बोलते हैं, like suppose मैं यहाँ पे division दे रही हूँ, division के बीच में मैं कोई भी tag दूँ ना, for example रैंडमली दे रही हूँ अभी. हेलो वर्ल्ड. ओके, सो डिवीजन है हेलो वर्ल्ड दिया, और ये बाय डिफॉल्ट ना न्यू लाइन पे आएगा. एंटर. वेलकम. पूजा, देखते. हाँ yes. our friends are requesting us to go slow, so can you please go slow? Okay, sorry. Okay, sorry guys, I'll go slow. हाँ ठीक है. और टेबल टैग समझा ना सबको? तो Yes, फिर मैं फर्दर मूव कर चुकी हूँ. ओके ठीक है. सो सी गाइज, लाइक डिविजन टैग क्या करेगा ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और आपको ना वो न्यू लाइन पे लेके. सी मैंने वो एक बताया नहीं कि न्यू लाइन पे जाने के, अगर सपोज यहाँ पे ऊपर एक टैग था, मुझे क्या चाहिए ना, फाइनल आरजेटी मुझे न्यू लाइन में प्रिंट करना है. सो मैं यहाँ पे दूंगी ना BR मतलब ब्रेक. मुझे यहाँ से ब्रेक करना है,
मतलब तो फिर ये जो फाइनल RJIT that will come to the second line. So let's see what happens. हाँ, ये देखो यहाँ पे सेल्फ पूजा पालेकर करंटली स्टडिंग इन फाइनल ईयर RJIT. पहले क्या ऊपर ही था, बट अभी ब्रेक देने की वजह से वो नेक्स्ट लाइन में आ चुका है. ओके, तो अभी इसका डिवीजन टैग का क्या ये है ना कि आपको ब्रेक नहीं देना पड़ेगा. अगर मुझे हेलो वर्ल्ड और वेलकम न्यू लाइन पे चाहिए था तो फिर मुझे प्रिंट करना पता लाइक पी टैग देके हेलो वर्ल्ड देन BR देन वेलकम. सिंपली जस्ट टेक इट इनटू डिवीजन टैग. सो ये बाय डिफॉल्ट आप नई लाइन पे लेके जाएगा. सी हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम न्यू लाइन पे आ रहे हैं. हाँ, this much about basic tags basically. Like these are the most like frequently used tags guys. और भी tags है HTML में, but ये ना most frequently used tags है, तो इसलिए मैंने इतना ही पढ़ाया. Again suppose if I याद आ रहा है तो नहीं, I guess इतना ही है most frequently used. Okay. Ma'am. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, please repeat Hi, the division hi. tag. Division tag. What is work of division tag? Why we are using division tag? Okay. Yeah, division tag is what? It's a block level element basically. It will like by default वो आपको अगर division में आप कुछ भी लिखोगे ना on the new line, और it will ना stretch the like ये ना आपका जो suppose window है उसका full width occupy करता है. मतलब जितना भी width, अभी ये फिलहाल तो मेरा टैग बहुत छोटा है लाइक हेलो, बट अगर यही कुछ टैग होता ना यहाँ तक तो ये लाइक यहाँ तक स्ट्रेच हो जाता. ये पूरा मतलब अपने पीसी का साइज यूज करता है. ओके. Yeah, ma'am. Thank you. वेलकम. ओके. मैंने यहाँ पे बहुत स्मॉल टैग दिए, इसकी वजह से मैं भी नहीं समझ रहा होगा, बट सिंस टाइम कम है. ओके, सो आई थिंक yeah, these are the basic tags only, most frequent use. एंड चैट बॉक्स में लिंक भी दिया है अगर आपको लाइक और भी टैग सीखना है तो. ठीक है. आई होप यू गाइज लाइक अंडरस्टूड एवरीथिंग. प्लीज लाइक अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, बिकॉज इसके बाद हम लोग एक असाइनमेंट देखेंगे कि वो कैसे किया जाएगा. सो टेल मी, किसी को कुछ डाउट है इतने टैग्स में? मैम हमें वो कॉलम में बॉर्डर लाना है तो कैसे लाएंगे? कॉलम में बॉर्डर लाना है तो ना दैट कम्स अंडर एक्चुअली CSS. आई एम नॉट लाइक रिमेम्बरिंग बेसिकली. Navya can tell you how to take a border on this side. Tomorrow we have session on this, so tomorrow please do Yeah. join for it. Hello. ठीक है. Yes. What is TB and I tag? Sorry. What is TB and I tag? अच्छा ओके. सो देखो आई टैग क्या है ना, अपना आई टैग विल बोल्ड करेगा सॉरी, जो भी आपने सेंटेंस लिखा है, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको इटैलिक में कन्वर्ट करेगा आई टैग. और जो TD मतलब TD स्टैंड्स फॉर कॉलम. अगर आपको कॉलम डिफाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे रोज के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था TR, तो TD के लिए सो कॉलम के लिए हमें TD टैग यूज करना है. और ये TH क्या है, TH भी कॉलम के लिए यूज होता है, पर वो सिर्फ आपके जो का नेम है वो थोड़ा बोल्ड करके देगा. गॉट इट? Yes. Ma'am, what is the full form? TH? Table head or what? Yeah, it's for table and H stands for highlight. Okay. Not table highlight. Sorry, it's for header. Yeah, head.
या अपना फर्स्ट कॉलम जो है ना अपने को बोल्ड में चाहिए था। Yes, it stands for table heading. मेरा आवाज Am I right now? Yeah, the voice is voice is echoing. echoing. इको आ रहा एक है। सेकेंड। अभी No. am I audible? Yes, now it's fine. Yes. Yes. Yes, yes. Yeah. Okay. So this is about the basic HTML tags. So guys, The I will voice is show very you an low. assignment. Sorry, I can't hear you properly. Yes, Jimil, like I got your point, but that is our CSS part. Since today we have less time, we can't cover that all styling and all part. So like कल आप आओगे तो आपको पता चलेगा ये styling वो सब कैसे करना है। Okay guys, मैं आपको एक पेज ओपन करके दिखा रही हूँ। हाँ, ये जो पेज इनिशियली नव्या ने दिखाया था वही है। सो इन दिस लाइक आप इसे कैसे करोगे? बता सकता है? माइक अनम्यूट कर आएगा तो भी चलेगा। HTML मतलब ऐसे एक अंदर रैंडम आइडिया क्या क्या पैराग्राफ हेलो आएगा और हेलो 3 डिवीजन और फिर हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ब्लैंक रहेगा, टेबल बना के ब्लैंक रखेंगे फर्स्ट रो एंड देन फॉर जो चारों है उसके लिए भी हम लोग टेबल बनाएंगे और ब्लैंक रखेंगे। बरोबर, राइट राइट। Yeah, and it is the basic like you can create using the paragraph. Then ये अपना input type है, उसका अपने को देना है blank में text वो सब। So let's do it then now only. Shubham, we have time ना? Yeah, we have time. Okay, you can start with this. Okay, ठीक है guys. So चलो start करते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर रही हूँ। एक नेम देते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। और डेस्कटॉप पे असाइनमेंट 1.html। ओके, असाइनमेंट 1.html हम लोग ट्राई करेंगे अभी वो पेज डिजाइन करने का 1 by 1। सो चलो, सो पहला तो मुझे लाइक ऑल HTML डॉक्यूमेंट शुड स्टार्ट विद एक फोल्डर क्रिएट करने का एक बार बता दो मेरे को, बार-बार एरर आ रहा है मेरे इसमें। कौन सा, ये VS कोड में? मैं फोल्डर बार-बार जो है ओपन नहीं होता ढंग से, दोबारा वो एक बार फोल्डर ओपन करने का बता दो ना प्लीज। VS कोड में ना? हाँ, VS कोड। सी, जो भी आपने डे 1 का फोल्डर किया ना, वहां पे जाके न्यू फाइल क्लिक करो तो फिर आपको ये मिलेगा। वहां पे फाइल एक .html से सेव करना। और अगर न्यू फोल्डर का भी ये देखो साइड में ऑप्शन है, जहाँ पे डे 1 मैंने क्रिएट किया था ना, उसी के साइड में एक न्यू फोल्डर है। सो फोल्डर क्रिएट करना है तो वहां पे जाके, और उसके अंदर फिर आपको जो भी सेव करना है उसका .html से। ओके, समझा ना? हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट में यूज तो अपना बेसिक डॉक टाइप HTML। ओके, डॉक टाइप HTML दिया, देन मैं HTML यूज कर रही हूँ। HTML देन /HTML। हाँ ओके,
और देन इसके बाद मैं अपना हेड टैग दे रही हूँ, उसमें मैं टाइटल देती हूँ कि अपना असाइनमेंट 1 है हेड, फिर उसमें टाइटल जैसे कि डे 1 असाइनमेंट, डे 1 वेब डिजाइन। ओके, सो ये टाइटल हमेशा हेड के अंदर आना चाहिए, विच इज विजिबल टू द यूजर। तो अभी अपना नेक्स्ट मूव करते हैं। सो बॉडी टैग, ओके। अभी सी बॉडी क्या क्या देखा था हम लोग ने, बॉडी के अंदर पहले तो मैं ये लोगो देख रही हूँ। बेसिकली ये क्या है ना, एक लिंक है, देखो ये अपना FB पे डायरेक्ट उसके लेके जा रहा है। तो ये लिंक है, तो अभी हम लोग ने लिंक टैग यूज किया था, ये HREF से सेम। मैं अभी भी उसका HREF में पाथ देती हूँ, Ctrl+C। हाँ, सो यहाँ पे ना सॉरी, यहाँ पे मैं एक 8 दे रही हूँ, HREF जो भी है। अभी मैंने वहां से पाथ FB पेज को कॉपी किया था, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ओके। और मैं यहाँ पे भी मुझे फेसबुक लोगो करके नाम चाहिए, और वो मुझे बोल्ड में चाहिए, इसीलिए मैं H1 यूज कर रही हूँ, H1 फेसबुक लोगो, ओके। देन /H1, देन मुझे ये लिंक का टैग क्लोज करना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स सी इन द ब्राउजर, ओपन इन ब्राउजर। सो या देखो अपना लाइक सॉरी, और ये फर्स्ट वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हम लोग ने फेसबुक लोगो लिखा था, ओके। तो अभी जैसे कि नेक्स्ट किसी ने तो बताया था कि हम लोग एक टेबल कर रहे हैं, और उसमें ही हेलो हम लोग ने 3 रो दिए हैं। हेलो हेलो, हाँ, हाँ, तो वो टाइटल क्या है, वो क्यों नहीं आ रहा है फिर वहाँ पे? फेसबुक और लोगो करके नहीं टाइटल, हाँ हाँ टाइटल ना, हाँ, ये टाइटल विजिबल नहीं होगा, जो हेड टैग के अंदर है ना वो विजिबल नहीं होता है, मतलब बॉडी पार्ट के अंदर ही जो हम लोग लिखेंगे वही सिर्फ यूजर को विजिबल होगा, वो तो उसके बैकएंड में है, ये डे 1 वेब डिजाइन ऑल। ठीक है। हाँ ठीक। तो अभी मैं नेक्स्ट इस पे जाती हूँ, जैसे कि किसने आता है टेबल, सो लेट्स क्रिएट अ टेबल, ओके। सो टेबल के अंदर अभी लेट मी चेक द पेज। हाँ, अभी ये पेज में क्या था, लाइक फर्स्ट रो में ईमेल और पासवर्ड, ऐसे मेरा 2 कॉलम है, फिर उसके जो भी डालना है उसके लिए एक सेकंड रो है। तो मैं पहला रो क्रिएट करती हूँ ईमेल एंड पासवर्ड के लिए, टेबल TR देन TD एंटर। मुझे क्या चाहिए था एक्चुअली, ईमेल चाहिए था, ईमेल एंड पासवर्ड, दैट टू इन बोल्ड। सो मैं एक बोल्ड टैग यूज कर रही हूँ, ईमेल ID, देन मैं अपना ये टैग आई विल क्लोज। सो ये मेरा मतलब फर्स्ट कॉलम आ गया। अभी मुझे देना था पासवर्ड, आई विल जस्ट कॉपी द सेम, फिर मुझे ये क्लोज करना है, और लेट्स सी इवन वेब डिजाइन, ओके। सो हाँ, सॉरी, ईमेल पासवर्ड देना है, ओके। सो ईमेल पासवर्ड दिया मैंने। हाँ, अभी देखो ये 2 टैग है, ईमेल है और एक पासवर्ड है। अभी मैं अपना सेकंड रो क्रिएट करती हूँ। जब हम लोग ना, ये अभी लाइक वेरी बहुत पास में, जब मैं इसके लिए एक टेक्स्ट क्रिएट करूंगी, तो लाइक उसका वेट ज्यादा है, तो अपने आप से मतलब वो अपने आप से उसमें ये हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा। सो ठीक है, मैं सेकंड अभी रो क्रिएट इसके लिए,
सो सेकेंड रो में क्या था, बेसिकली मुझे वैल्यू डालना है, तो कॉलम के लिए एंटर, टीडी में अब मैं दे रही हूँ यहाँ पे इनपुट। या अभी कैसा है ना, ये जब हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं, जो स्पेस आपको दिख रहा था, हाँ ये जो स्पेस दिख रहा था ना, उसके लिए इनपुट है, उसका टाइप देना है, टाइप है तो टाइप में आपको ईमेल है, एंड ऑफ कोर्स टेक्स्ट बॉक्स, तो वैल्यू उसके लिए टैग यूज होगा, वैल्यू में हम लोग ब्लैंक रखेंगे। सो लेट्स ट्राई इट। ईमेल वैल्यू ब्लैंक रख रही हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट बता रही हूँ, यहाँ ईमेल है मेरा। ओके देन ये वाला टाइप मेरा क्लोज हो गया। देन अगेन इसके लिए मैं करती हूँ कंट्रोल वी, इनपुट टाइप पासवर्ड। ओके पासवर्ड, अगेन मुझे पासवर्ड का जगह खाली रखना था तो मैंने ये कर दिया। मुझे अभी एक बटन क्रिएट करना है, जो लॉगिन बटन हम लोगों ने देखा था। सो लॉगिन बटन के लिए अगेन इनपुट, सॉरी या इनपुट। अभी कैसे ना बटन मतलब क्या होता है, जब हम उसे हिट करते हैं तो इट विल टेक यू ऑन द नेक्स्ट पेज। सो उसके लिए हमेशा याद रखो कि सबमिट हमें यूज करना है। यू कैन यूज बटन एज वेल और एंड यू कैन यूज सबमिट। सो बटन है, एक गलती से नेम आया, वैल्यू, यहाँ पे भी वैल्यू था एक्चुअली। ओके सो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको अभी वैल्यू देना है कि लॉग इन, आपको वो बटन के अंदर क्या दिखना चाहिए, वैल्यू। ईमेल पासवर्ड का तो मुझे ब्लैंक चाहिए था क्योंकि वहां पे आई एम गोइंग टू पुट समथिंग। या लॉग इन किया मैंने, सॉरी टीडी किया। अभी मुझे ये रो अपना क्लोज करना है, स्लैश। ठीक है लेट्स सी क्या है, देखते हैं ब्राउजर में। सो ये मेरा डे 1 था, रिफ्रेश द पेज। सो दिस सी, यू कैन सी दिस, ये मेरा टेबल के फॉर्म में मैंने इसे क्रिएट किया था। ये मेरा लाइक फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और फिर ये थर्ड रो में, सॉरी सेकंड रो में हम लोग ने लाइक ब्लैंक वैल्यूज डाला था। और बटन के लिए मैंने यूज किया था टाइप सबमिट, या फिर बटन ऑल्सो आप यूज कर सकते हो। गॉट इट ना गाइस, और am I going fast? Yeah, just a second. Okay, fine. Once you complete, let me know. Hello? How that blank हाँ box came then? Blank box. ब्लैंक बॉक्स ना, वो ठीक है, मतलब वो एक फॉर्मेट है डिफाइन किया हुआ, लाइक इनपुट टाइप ईमेल, राइट। सो वैल्यू क्रिएट दैट ब्लैंक बॉक्स, और मैं यूजर को बता रही हूँ कि मेरा ई टाइप है, मतलब जब भी अगर यूजर ने कुछ ऐसा ईमेल टाइप किया सो वो बताएगा नहीं टाइप ईमेल है, सो इट शुड बी लाइक @gmail.com। सो इसीलिए मुझे टाइप बताना है, पासवर्ड बताना है। पासवर्ड मतलब जब मैं करूंगी तब वो यूजर को दिखेगा नहीं, सम लाइक सी डॉट आएगा वो। अभी मैं यहाँ पे कुछ अपना पासवर्ड डालू सी, ये आपको विजिबल नहीं है, इसीलिए मैंने टाइप पासवर्ड लिया। और वैल्यू ब्लैंक, तो वो ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स है, वो इसने क्रिएट किया। ओके वहाँ पे सबमिट की जगह और क्या इस्तेमाल कर सकते थे? बटन, यू कैन यूज बटन एज वेल। सी बटन क्रिएट किया तो भी वो सेम, मतलब लॉग इन सबमिट या फिर बटन, कोई भी एक टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैं नेक्स्ट चीज पे जा रही हूँ अभी। सी लाइक ये वाले पेज में मेरा क्या था ना, जो मेरा फॉरगेट अकाउंट है ना, वो क्या हो रहा है, मेरा सेकेंड कॉलम में आ रहा है बेसिकली। सी तो मैं क्या करूंगी, एक रो क्रिएट करूंगी बट कुछ डालूंगी नहीं। लेट्स सी, ओके सो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक TR करके एक रो क्रिएट किया, ठीक है। अभी मैं उसके अंदर वैल्यू दे रही हूँ TD, क्योंकि मुझे फर्स्ट इसके लिए कुछ चाहिए नहीं है। वो जो मेरा फॉरगेट अकाउंट आ रहा है ना, वो मुझे मतलब सेकंड कॉलम में चाहिए।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया TD. ओके, TD. देन वो मैं एक लिंक के अंदर देती हूँ A. सिंस वो एक लिंक क्रिएट है ना, फॉरगेट अकाउंट के नीचे एक अंडरलाइन है, तो इट्स एक्ट्स लाइक ए लिंक. तो मुझे वो लिंक एक्चुअली एक्टिव नहीं करना है, तो मैं इसलिए मैं हैश दे रही हूँ. मतलब वो सिर्फ लिंक की तरह दिखेगा, अंडरलाइन और ब्लू कलर का. सो मैंने यहाँ पे सिर्फ हैश दिया. ओके, ठीक है. मैं यहाँ पे दे रही हूँ फॉरगेट अकाउंट. फॉरगेट अकाउंट दिया मैंने यहाँ पे. देन /TD मैंने किया. और इन दिस वे मैं अभी अपना TR टैग क्लोज कर रही हूँ. ओके, हाँ, TD क्रिएट हो चुका था ऑलरेडी. देखो और TR टैग मैंने क्लोज किया. सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन ब्राउजर. ओके, सी फॉरगेट अकाउंट. ओके, यहाँ पे आ रहा है ना. लेट मी चेक. TR ना, /TR. ओके, ठीक है. इस TR में ना आई विल गिव एज सॉरी TD. हिट एंटर. हाँ, क्योंकि मुझे वो वाला कॉलम ना एक्चुअली ब्लैंक चाहिए था, तो इसीलिए मैंने वो किया. सो लेट्स सी इन द ब्राउजर क्या आ रहा है. हाँ, सी इट मूव्स टू द सेकंड कॉलम, क्योंकि मैंने फर्स्ट कॉलम ना TD देखी उसे ब्लैंक रखा. सी यहाँ पे मैंने क्या किया ना, एक रो क्रिएट किया. उस रो के जो TD है ना, वो मैंने कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं वैल्यू, तो ब्लैंक रखा. इसीलिए वो जो फॉरगेट अकाउंट है वो नेक्स्ट पेज पे आया, और वो एक ना लिंक की तरह ये हो रहा है. ओके, होप यू गॉट टिल हियर. सो दिस मच अबाउट आवर पार्ट अपना टेबल के अंदर था. गॉट इट ना गाइस? सो दैट आई कैन. Can you tell what the hash meaning was? Sorry? That href equal to hashtag. What is that? हाँ, ओके. हैशटैग मतलब क्या करेगा ना, एक लाइक बाय डिफॉल्ट से जो फॉरगेट अकाउंट है ना, उसे लिंक की तरह वो बिहेव करेगा, क्योंकि हैशटैग मेरा कोई पाथ नहीं है. अगर मैंने लाइक जैसे कि यहाँ पे मैंने href दिया था, जब मैं इस पे क्लिक कर रही थी ना, तो वो मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा था. सो href मुझे सिर्फ दिखाना है वो एक लिंक की तरह, बट मुझे एक्चुअल में उसको क्लिक करने के बाद उसे एक्टिव नहीं. सो इसीलिए मैं उसे हैशटैग दे रही हूँ. ओके, ओके. सो देन लेट्स मूव फर्दर गाइस. ये मेरा इतना था, लाइक टेबल के लिए इतना ही था. इतना ही पार्ट ना अपना लाइक टेबल के अंदर था, ये इतना. सो अभी जो नेक्स्ट वाला है ना, वो अभी करते हैं. सो मैं यहाँ से डायरेक्ट टेक्स्ट कॉपी कर रही हूँ. वो मेरा ऑफकोर्स पैरा के अंदर है, पैराग्राफ जो मैंने कॉपी किया है. ओके, Ctrl+S. सो वो एक पैरा क्रिएट हो गया. मुझे ना एक इमेज देना है बेसिकली. अभी फिलहाल तो मेरे पास इमेज सी image. Actually I don't have image. I will give the like alternate. It's a Facebook logo. Okay, image source is equal to I am facebook.jpg. या facebook.jpg. since I don't have that image, like मैं alt करके दे रही हूँ यहाँ पे कि ये फेसबुक आइकन है. ठीक है, फेसबुक आइकन है. लेट्स सी क्या आ रहा है यहाँ पे. हाँ, देखो मैंने यहाँ पे वो जो एक पैराग्राफ क्रिएट किया था, फेसबुक हेल्प्स यू कनेक्ट एंड शेयर विद द पीपल योर लाइफ. और यहाँ पे मुझे फेसबुक लोगो चाहिए था, बट सिंस आई डोंट हैव इमेज,
मैंने ऑल्टरनेट दे दिया कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फेसबुक आइकन। ठीक है, समझा ना यहाँ तक? गाइस भी इंटरैक्टिव मतलब मुझे समझेगा कि नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद को ही बोलते जा रही हूँ। हेलो। ठीक है, तो अभी अपना है, हाँ, यस। मेरा जो ईमेल और पासवर्ड लिखा था रो में, बट वो पासवर्ड जो है ना, मतलब एकदम बाजू में आ गया ईमेल के। हाँ, ईमेल के बाजू में आ गया, ठीक है। जब आप टेक्स्ट बॉक्स करोगे ना, तो उसके विड्थ से वो अपने आप लाइक उन दोनों के बीच में मतलब गैप आएगा। सी पहले मैंने क्या किया था, मैं इतना पार्ट को बेसिकली कट पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए। कट किया मैंने यहाँ पे, सो लेट मी रन। अरे यार, हाँ, ओके। ठीक है, अभी सी। और देखो मैंने यहाँ पे ना उनका वो कट कर दिया है, जो भी इनपुट टाइप एंड वैल्यू वो सब था, तो फिर वो ना पास पास में ही दिख रहा है। और जब आप उसे डालोगे ना, मुझे, हाँ, सी अभी क्या होगा, अपने आप से दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट होगा ईमेल और पासवर्ड में। समझा ना? ठीक है, अभी हाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ ठीक है, देखो अभी था कि अगर सपोज यूजर को ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट वो, ठीक है। सो मैं सिर्फ ये टेक्स्ट कॉपी कर रही हूँ। In output is actually showing the यहाँ से ये text- Google logo, like Facebook logo. Where? On my output, I'm actually Google getting the logo किधर? Facebook logo. I'm actually getting the Facebook logo. हाँ, तो मतलब किस में रह रहा है, मुझे समझा नहीं। हेलो, लाइक तेरे इसमें लाइक सिर्फ आइकन बता रहा है, मेरे में गूगल लोगो ही, मतलब उसका फेसबुक का लोगो ही मतलब प्रिंट हो गया। नहीं हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा होगा, है। फेसबुक लोगो प्रिंट ही हो गया। सी द कोड, एक बार कोड। ये नहीं हो गया। पूजा, guys, maybe there is some network issue. Just a minute, I'll talk to her.
Guys, just give me 2 minutes. We'll continue shortly. Um, guys, she will return in just maybe 5 minutes. So till now, whatever she has taught, if you have some doubts, you can ask me. Like if you didn't get output and somewhere, if you're stuck, please let me know. Everyone got the output? Yeah. Yeah. Yes. Yes. Okay. You will also teach frames. No, as it is beginners training program, we are just doing with HTML, CSS, and like Bootstrap. We will do some part of it. But if you want to learn like Angular, JavaScript, so it's not possible now. But for that, we have internships. You can register for internships. Gmail Shah. Basically, this A tag is for giving this reference tags, like any links you want to give, then this tags are used. Yeah, Ashwin, okay. Guys,
till Pooja returns, you can try on your own to make this page. As soon as she will return, she will continue with this. Hello. Am I audible? Yes, Yes. Pooja, you're audible. Okay. Navya, just stop sharing. Yeah. Sorry guys, टेक्निकल इशू की वजह से. Yeah, screen is visible, ना? ठीक है. Okay. Guys, are you there ना? मैं स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट अपना. हाँ, ठीक है. ओके, तो यहाँ तक हम लोग आ चुके थे. लाइक इमेज का एक लोगो दिया था मैंने. फिर मुझे क्या करना था ना कि एक क्रिएट अकाउंट करना है. यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, हाँ, सो ये क्रिएट अकाउंट वाला स्टफ आई विल जस्ट कॉपी. मैं कॉपी कर रही हूँ यहाँ पे एक अंडर पी टैग के अंडर में इसे पेस्ट कर रही हूँ. कंट्रोल V. सो जैसे कि मुझे वो ना यहाँ पे मुझे क्लोजिंग टैग दे रही हूँ मैं. ओके, सो सी यू कैन सी. हाँ, वहां पे वो आ चुका होगा. मैं फास्ट जा रही हूँ अभी थोड़ा. नेक्स्ट उसके बाद अपना क्या था ना वो मैं डिजाइन करके दिखाती हूँ. क्रिएट अकाउंट के लिए जो भी था अपना फर्स्ट नेम, फिर सर नेम, मोबाइल नंबर, वो क्रिएट करते हैं हम लोग. तो मुझे वो बोल्ड में चाहिए, इसलिए मैं एक बी टैग यूज कर रही हूँ. उसमें मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम. या ओके, सो फर्स्ट नेम, देन सॉरी, हाँ, मैंने ये मेरा क्लोज हो गया. फर्स्ट नेम आया बरोबर. अभी मुझे क्या देना है, कुछ मुझे उसमें डेटा डालना है. तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इनपुट टाइप दे रही हूँ, वहां पे टेक्स्ट दूंगी मैं. मुझे ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए यहाँ, इसलिए मैं BR यूज कर रही हूँ. सो ओके, इनपुट, या इनपुट टाइप ना, इनपुट टाइप में मैं क्या दे रही हूँ, टेक्स्ट चाहिए मुझे. जो भी मैं नाम वो सब डालूंगी. एक देखते हैं हम लोग आया है कि नहीं यहाँ पे रन करके. डे 1. सो देखो, ये था अपना क्रिएट अकाउंट वाला जो स्टफ मैंने कॉपी किया था. और ये फर्स्ट नेम अभी जो मैं यहाँ पे डालूंगी वो मुझे विजिबल होगा. तो इसीलिए मैंने इसका टाइप क्या दिया, टेक्स्ट दिया है. और ईमेल का कैसा होता है ना, लाइक @ अगर गलती से किसी ने दिया नहीं तो फिर वो वहां पे एरर देगा. और पासवर्ड के लिए भी मैंने सिर्फ वैल्यू = ब्लैंक दिया था, क्योंकि पासवर्ड विजिबल नहीं होना चाहिए किसी को. ओके, और यहाँ पे मुझे ये सब विजिबल है, इसलिए मैंने टेक्स्ट दिया है टाइप. ओके, सो सिमिलरली हम लोग आगे जाते हैं. अगेन मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए. या सो मैंने BR टैग यूज किया है. देन बोल्ड के बाद कॉपी करती हूँ सिंपली, कंट्रोल V. सो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए ना, सरनेम चाहिए. हाँ, सरनेम. ओके, कंट्रोल S, सरनेम. अगेन उसका भी वही मुझे करना है. उसका जो टाइप है, उसका भी जो भी टाइप है वो मुझे देना है, टेक्स्ट देना है. सो इट इज प्रीटी इजी. सिर्फ कॉपी पेस्ट करो. इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया मैंने यहाँ पे. यहाँ पे मैं ब्रेक दे रही हूँ. ओके, एंटर. ब्रेक दिया. मुझे ये चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए. सो अगेन मैं कॉपी कर रही हूँ ये, कंट्रोल C, कंट्रोल V. इनपुट टाइप है टेक्स्ट है, सॉरी, उसके पहले मुझे ये कॉपी करना है फर्स्ट नेम ना. सो सरनेम दिया था, वैसे ही मैं ये कॉपी कर रही हूँ. कंट्रोल C,
कंट्रोल V, अभी मैं यहाँ पे दूंगी मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ओके, मोबाइल नंबर। सो सी, यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर दिया। अभी मैं इसको अभी इसके बाद एक ब्रेक डाल रही हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। इनपुट टाइम दिया, मोबाइल इनपुट टाइप दिया, मोबाइल नंबर का भी मुझे टेक्स्ट चाहिए था। सो ठीक है, उसके बाद मैं अगेन ओके। सो एक बार देखते हैं लाइक बैकएंड में क्या चल रहा है। सी गाइस, हम लोग ने फर्स्ट नेम क्रिएट अकाउंट के लिए सरनेम और ये मोबाइल क्रिएट किया और ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्रिएट हो चुका है। और ये नेक्स्ट लाइन पे है क्योंकि मैंने 2 बार ऐसा BR दिया, मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए था, इसलिए मैंने इसके बाद ब्रेक डाला है। यहाँ तक आया सबका? यस एनीवन? यहाँ तक आया? हाँ ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। क्या था अभी अपना, एक सेकेंड लेट मी सी। हाँ अभी क्या था, हाँ पासवर्ड ना अभी, हाँ ओके। ये डेट का एक मुझे डालना है, बर्थडे डेट, और एक पासवर्ड और ये डालना है ना, ठीक है। सो या अगेन बोल्ड, बोल्ड में मैं डाल रही हूँ पासवर्ड, ओके, स्लैश बोल्ड। अभी मैंने पासवर्ड डाला, अगेन उसका जो टाइप होगा वो पासवर्ड मुझे देना पड़ेगा। पासवर्ड है, देन इनपुट टाइप में दे रही हूँ यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट करके, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ओके। सो इनपुट टेक्स्ट है, इसका भी मैंने पासवर्ड का पासवर्ड दे दिया। टेक्स्ट नहीं देना है मुझे, पासवर्ड देना है क्योंकि वो विजिबल नहीं होना चाहिए। पूजा, कैन यू गो बिट स्लो? ओके, सो पासवर्ड, हेलो पूजा। ओके ओके फाइन, यस यस नव्या, आई कैन हियर यू। ओके गाइस, ये बहुत लाइक सिंपल था इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया क्योंकि आपको सिर्फ ये इतना पार्ट ना कॉपी करना था, कॉपी पेस्ट मतलब एक बार क्रिएट किया ना फर्स्ट नेम, देखो ये सेम है, फिर सिमिलरली यहाँ पे मुझे सरनेम के लिए करना था, ठीक है, ये सेम है। फिर मैंने मोबाइल नंबर, उसके लिए भी मैंने क्या किया, सिर्फ ऊपर का पार्ट कॉपी किया और जो मुझे दिखना चाहिए टेक्स्ट में वो मैंने लिया। सिमिलरली फॉर पासवर्ड, सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड के जगह अभी मैंने क्या किया ना कि टाइप में पासवर्ड डाला क्योंकि वो it should not be visible to anyone. So simply I am giving break just to separate from the first text. Okay. So yeah, password हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए ना डेट चाहिए, मतलब बर्थ डेट चाहिए। So bold birthday, yeah, so it's like when your birthday came, then मैंने ये दिया है। अभी मैं यहाँ पे ब्रेक दे रही हूँ, ओके। सो आफ्टर ऑल ब्रेक, अभी क्या है ना कि सी, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा अभी तक आया नहीं है, ओके, आई हैवंट सेव। हाँ देखो यहाँ पे क्या है ना, बर्थडे है बट उसका अभी अपने को डेट चूज करना है, तो वो डेट वाला आना चाहिए, तो उसके लिए है इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। सो सिंपली कॉपी पेस्ट, यहाँ पे जो इनपुट टाइप दिया था पासवर्ड, अभी मैं डेट दूंगी तो अपने आप से ना वो कैलेंडर वहां पे क्रिएट हो जाएगा, ओके। सो लेट्स चेक, हाँ कंट्रोल S, ओके सी, मैंने लाइक बाय डिफॉल्ट मुझे कुछ ऐसा देना नहीं पड़ा, DDMM YY वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा क्योंकि उसका टाइप डेट है। सो जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। आई होप यू कंप्लीट टिल हियर। अभी अपना पेज ऑलमोस्ट क्रिएट होने आया है, बहुत थोड़ा ही बाकी है। गाइस कंप्लीटेड ना टिल हियर? यस मैम। ओके, अभी मुझे क्या था, मेरा शायद से जेंडर था, सॉरी। If we enter the password, is the password visible?
नो, सिंस लाइक वी हैव गिवन द टाइप ऑफ पासवर्ड एज पासवर्ड ना, तो वो वेब ब्राउजर को अपने आप से पता चल जाएगा कि ये पासवर्ड है टाइप, तो फिर वो विजिबल नहीं होगा यूजर को। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं कुछ तो पासवर्ड दे रही हूँ, सी इट्स नॉट विजिबल। ओके, And if you want to make अगर it आपने visible, like हाँ like सिर्फ this, we have the टाइप options. टेक्स्ट देना है ना, टाइप इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट दोगे ना, टेक्स्ट कंट्रोल एस, ओके अभी मैं यहाँ पे कुछ डाल रही हूँ, सी वो जो भी डाल रही हूँ ना वो विजिबल है पासवर्ड। सो Okay. हाँ ठीक वो है, शो यहाँ पे मैं पासवर्ड का ऑप्शन डाल सकते हैं क्या HTML से? शो पासवर्ड मतलब उसके लिए थोड़ा लाइक एडवांस में जाना पड़ेगा, मुझे अभी इतना याद नहीं। हाँ पासवर्ड कंट्रोल एस, you can search, you will get it on Google. Like our motto is to just teach you like basics na, we are also students. Okay guys, so move further. So मेरा एक वो जेंडर वाला था, मैंने कुछ हाँ लिखा नहीं। ओके सो यहाँ पे मैंने एक जेंडर करके एक टेक्स्ट क्रिएट किया है। अब मैं क्या दे रही हूँ ना, इनपुट या इनपुट टाइप में क्या दूंगी अभी, रेडियो, क्योंकि मुझे सिलेक्ट करना है वेदर इट्स अ मेल और फीमेल। सो जो टाइप है उसका मतलब रेडियो होना चाहिए, रेडियो। देन मैं दे रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा फीमेल। ऊपर करो। अभी तो ठीक है, मैंने रेडियो दिया। अभी सिमिलरली मैं फीमेल के लिए भी ऐसा ही चीज क्रिएट करूंगी। ओके आई एम सॉरी गाइस। हाँ सो यहाँ पे मैंने दिया फीमेल, अब मैं यहाँ पे सिर्फ दे रही हूँ मेल। ओके मेल, सो वी आर जस्ट ओके। सो लेट्स सी वो रेडियो बटन क्रिएट हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश द ब्राउजर, यहाँ देखो यहाँ पे जो जेंडर है फीमेल या फिर मेल, यू कैन चूज। नहीं एक्चुअली ओके रेडियो टू रेडियो, आई डोंट नो, दोनों नहीं होना चाहिए था वहां पे। Yeah, let's move further. टाइप रेडियो, देन अभी ठीक है, अभी अपना चेक बॉक्स क्रिएट करना है इसके लिए। फर्स्ट लेट मी सी द क्या था, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या था, आई एक्सेप्ट ऑल द, उसके लिए एक चेक बॉक्स है और फिर क्रिएट अकाउंट। अभी दो ही चीजें रह गई है इसमें। या इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैं चेक बॉक्स दे रही हूँ क्योंकि मुझे वो बाय डिफॉल्ट चेक ही रखना है। ओके चेक बॉक्स है, देन उसके यहाँ पे मैं एक बोल्ड में टेक्स्ट लिख रही हूँ कि आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। आई सिंपली कॉपी फ्रॉम हियर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या सो ये मेरा एक क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे ब्रेक दे रही हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। अभी मुझे सबमिट करना है। सो इनपुट टाइप, जैसे कि मैंने बोला था सबमिट या फिर बटन, आप दोनों में से कुछ भी एक यूज कर सकते हो। और उसमें सबमिट में मुझे एक वैल्यू देना है कि क्रिएट अकाउंट करके, वैल्यू इज इक्वल टू क्रिएट अकाउंट। ओके सो लेट्स चेक इन द बैक एंड। अपना ये
अरे डे 1 इधर है। हाँ देखो गाइस, जो हम लोग ने पेज देखा था वो यहाँ पे लाइक आ चुका है। सी, यही पेज हम लोग ने देखा था ना कि स्टार्टिंग में अपने को बनाना है। Yes. अभी हम लोग ने वो कंप्लीट किया। लाइक जब हम लोग करते तो हमें पता चलता है कि क्या क्या गलती कर रहे हैं। सो या Just show the last part of the codes like gender and I accept all the terms वाला. कौन सा? वो लास्ट वाला कोड जहाँ पे जेंडर इनपुट लेते हैं लाइक इनपुट। अच्छा इनपुट ना, ये टाइप मतलब जैसे कि अभी टाइप क्या है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, उस हिसाब से मैंने टाइप दिया है। ओके अगर एक बटन की तरह क्रिएट करना है तो इधर सबमिट और बटन यू कैन क्रिएट, और वो मतलब बटन में मुझे कुछ नाम देना है तो इसलिए मैंने उसका वैल्यू डाला कि वो क्रिएट अकाउंट है। सो इसीलिए वो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि क्रिएट अकाउंट, बट ऑफ कोर्स वो क्लिक नहीं होगा यहाँ पे भी करो क्योंकि नो एक स्टैटिक पेज है, लिंक से कनेक्ट नहीं किए। वो जो रेडियो के बगल में फीमेल लिखा है वो मेंशन करना कंपलसरी है क्या वहाँ कोड के उधर? हाँ हाँ, तो फिर आपको दिखेगा ना, सिर्फ 2 बटन क्रिएट होंगे ना। आपको चाहिए क्या, लाइक टाइप रेडियो दिया मैंने बट मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कि क्या है ये। सो इसीलिए फीमेल वाला, और मैंने यहाँ पे कुछ ब्रेक नहीं दिया है, नहीं तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता, एक मेल फीमेल का सिमिलर लाइन में मैंने किया है। सी यहाँ पे फीमेल मेल अगेन, यहाँ पे वो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा उसका सब कुछ। या सो सी गाइस, हम लोग ने इतना बिल्ड किया है आज, लाइक जो भी बेसिक्स टैग से ही है, ये भी कुछ नया सीखने को मिला होगा जरूर। Yes. Yes. ओके ओके, सो या दैट्स ऑल। लाइक HTML टैग से हम लोग ने बेसिक्स दिए, बेसिक्स देखे, उससे हम लोग ने एक पेज डिजाइन किया सो दैट जो भी लर्न किया है उसके ऊपर कुछ बिल्ड किया तो एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है। सो या दैट्स ऑल फॉर द लाइक बेसिक्स HTML टैग। मेरे थैंक यू। कोड में क्या है हेलो हेलो, हाँ हाँ अगर मैंने एक बार वो जो जेंडर वाला चेक बॉक्स है अगर उसको एक बार क्लिक किया तो फिर लाइक वो दोबारा अनक्लिक नहीं हो रहा है, लाइक दोबारा डिसलेक्ट नहीं हो रहा है वो अनसेलेक्ट। हाँ, मेरा देखा वो मैंने भी, मेरा भी सेम वही है। एक सेकेंड। पूजा वहां पे ना नेम नेम देके ट्राई कर, हाँ नेम दोनों में दे जेंडर और ट्राई कर। हाँ, आईडी देने से शायद इश्यू सॉल्व हो जाएगा। वेर इट इज, यहाँ पे मतलब मैं नेम इज इक्वल टू फीमेल दूं? नहीं, नेम इक्वल टू जेंडर दे दे दोनों में। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं पूजा, तूने टाइप इक्वल टू रेडियो लिखा है ना, जस्ट उसके हाँ आगे, जस्ट उसके आगे नेम इक्वल टू जेंडर लिखना। हाँ ओके, लेट्स चेक कुछ आ रहा है क्या। दोनों में दे, मेल एंड हाँ फीमेल यहाँ दोनों पे में। देते हैं। हाँ ठीक है, दोनों एक साथ चेक बॉक्स ये हो रहा है ना। हाँ सी गाइस, नाउ इट्स वर्किंग, नाउ इट इज वर्किंग प्रॉपरली। हाँ हो रहा है एक अभी। टाइम पे एक ही चेक हो रहा है। हाँ यहाँ पे जो भी आपने क्रिएट किया है ना बस उसे नेम में डालना है तो फिर इश्यू सॉल्व हो रहा है।
ओके, तो ठीक है। The changes you have ओके, made. थैंक यू सो मच। हाँ, यस, Show the changes you have made. ओके। मैम सी चेंजेस में क्या कहना हमने है जो वो? हेलो मैम हाँ, रेडियो बटन वहां पे ना दोनों एक साथ सिलेक्ट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक ये दिया, नेम दिया, जेंडर जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करे वो आपको लाइक डबल कोट्स में डालना है, मतलब एट द टाइम वो रेडियो बटन एक ही क्लिक करेगा। Got it. Got it. सी, हाँ, ओके, ओके गाइस। ओके मैम, थैंक यू। Yes, okay guys, that's all for the day.